عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگلے حصے کی طرف میں چل رہا ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجۃ الوداع کو ابھی 3 مہینے سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر بیماری کا حملہ ہوا، اور وہ بھی اتنا زوردار کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ بیماری کی شروعات اس طرح ہوئی کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے، اپنے غلام ابو معیہبہ کو اٹھایا اور فرمایا: ابو معیہبہ، مجھے اللہ کا حکم ملا ہے کہ اس وقت جا کر وقیع قبرستان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم انہیں ساتھ لے کر گھر سے نکلے۔ قبرستان پہنچے تو فرمایا: تم پر سلامتی ہو اے قبر والو، تمہیں مبارک ہو وہ جگہ جہاں تم پہنچ گئے، تمہاری جگہیں زندہ رہنے والوں کی جگہوں سے بہتر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے آ رہے ہیں، اتنے اندھکارمئے فتنے جیسے اندھیری رات کے حصے، ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا، اور بعد میں آنے والا ہر فتنہ اپنے سے پہلے والے فتنوں سے بدتر ہوگا۔ اس اوسر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک قبرستان والوں کے لیے دعائیں کی۔ غلام کہتے ہیں کہ پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا: ابو معیہبہ، تجھے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں کہ میں ان کے بیچ ہمیشہ رہوں اور جنت میں چلا جاؤں۔ ایک اور دنیا کے ایک خزانے ہیں اور پھر جنت، دوسری اور اپنے رب کی ملاقات ہے اور جنت۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ دنیا کے خزانوں میں رہنا پسند کر لیجئے، بعد میں جنت میں چلے جائیے۔ ابو معیہبہ نے بڑی ونمرتا کے ساتھ اپنے دل کی بات کہہ دی: نہیں ابو معیہبہ، میں نے تو اپنے رب سے ملاقات اور جنت کو پسند کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ابو معیہبہ کا تسلی دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم قبرستان سے واپس آ گئے۔ یہ ہجرت کا 11واں سال تھا، بدھ کی رات تھی، صفر ماہ کی آخری تاریخیں تھیں، یا ربیع الاول کا پہلا ہفتہ تھا۔ جس رات کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی، اس دن آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھے۔ صبح کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ دیکھا تو وہ سر کے درد میں گرست تھیں اور بے قراری میں کہہ رہی تھیں: ہائے میرا سر۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا: عائشہ، خدا کی قسم میرے سر میں تو اور بھی زیادہ درد ہے، ہائے میرا سر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کراہیں: ہائے میرا سر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح کے انداز میں فرمایا: عائشہ، کیا نقصان ہے اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ کہ خود میں اپنے ہاتھوں سے دفن پہناؤں، تمہاری نماز پڑھاؤں اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے تمہیں قبر میں اتاروں۔ جوان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: کوئی اور بیوی اس کے لیے زیادہ اچھی رہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی، لیکن تکلیف بہت زیادہ تھی، آپ اس سے زیادہ تفریح نہ کر سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیم تھا کہ ایک ایک دن پرتیک بیوی کے یہاں ٹھہرتے۔ بیماری کی حالات میں بھی آپ کے اس نیم میں فرق نہ آیا، باری باری آپ ہر بیوی کے یہاں جاتے رہے۔ 5 دن تک ایسا ہی چلتا رہا، پھر حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ساری بیویوں کو بلایا، ان سے کسی کے ایک کے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت چاہی۔ ساری بیویاں خوشی سے تیار ہو گئیں۔ پھر سب کی مرضی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ٹھہرنا طے ہو گیا۔ کمزوری بہت زیادہ تھی، بنا کسی سہارے کے چلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب ممکن نہ تھا۔
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको सहारा देकर बड़ी परेशानियों से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ लाए। सिर दर्द की ज़्यादती के कारण आपके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। ये बुध का दिन था। आपकी बीमारी को पूरे 8 दिन हो चुके थे। मुसलमान उदास उदास थे, बेचैन और बेकरार थे, क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था और बीमारी हर क्षण बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कभी आप इस तरह बीमार ना हुए थे, इसलिए आप भी इसलिए और भी ज़्यादा निराश और फिक्रमंद थे। हिजरत के छठे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हल्का सा बुखार हुआ था। आपने 2-4 दिन खाने पीने में परहेज़ किया और उसका असर जाता रहा। 7वें साल एक यहूदी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर मिला हुआ गोश्त खिला दिया था। जहर के असर से कई दिन बेचैनी रही, लेकिन कुछ दवा इलाज के बाद उसका असर भी जाता रहा। ज़िंदगी में केवल 2 घटनाएं हुई, इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहे। और यह कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि आपके उसूल ही कुछ ऐसे ही थे, उनका जो भी पालन करे बीमारी उसकी तरफ निगाह ना उठाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना उसी समय खाते जब भूख लगती, खाकर उठते जब भी कुछ भूखे होते। एक बार की बात है कि मिस्र के बादशाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तोहफे में शहद दो बाटियाँ यानी मारिया और सीरीन और एक हकीम भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद और बादियों को स्वीकार कर लिया और हकीम को यह कहकर वापस कर दिया कि हम लोग तो भूख के बिना खाना ही नहीं खाते, और जब खाते हैं तो भूख से कम ही खाते हैं। भला बीमारी का यहाँ कहाँ गुजर। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा स्वच्छ रहते, दिन में कम से कम 5 बार वज़ू करते, कपड़े पाक साफ रखते, गंदगी से खुद भी नफरत करते और दूसरों को भी पाक साफ रहने का शौक़ दिलाते। फरमाते, सफाई सुथराई ईमान का अंग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सुस्ती और बेकारी को राह न देते, हमेशा चुस्त और सतर्क रहते, कभी इबादत में व्यस्त होते, कभी मुसलमानों की भलाई के लिए दौड़ धूप करते और उनके लिए दिन रात एक कर देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भोग विलास के बंदे और इच्छाओं की पुजारी न थे। आपकी इच्छाएं भी अल्लाह के अधीन थी। जितनी गलत लज्जतें और नुकसानदेह दिलचस्पियां हैं, उन सब से आप कोसों दूर थे। ये ऐसी बातें हैं कि जो भी इनका ख्याल रखे सेहतमंद और तंदुरुस्ती उनके पांव चूमेगी। यही कारण है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और तबीयत संभलती हुई मालूम ना हुई, तो बीवियां बेचैन हो गई, साथ ही बेकरार हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत गिरती गई। बुखार कभी घट जाता, कभी बढ़ जाता। जब तक पैरों में दम रहा और चलने फिरने की ताकत रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाते रहे और मुसलमानों की इमामत करते रहे। सबसे आखिरी नमाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई वह मगरिब की नमाज थी। ईशा का वक्त हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा, बस आपका इंतज़ार है। आपने बर्तन में पानी भरवाया और गुस्ल किया। उठना चाहा तो बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने फिर कहा, हुजूर का इंतज़ार है। आप फिर नहाए और उठना चाहा। इस बार भी आप बेहोश हो गए। कुछ देर में होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? फिर वही जवाब मिला, आपका इंतज़ार है। आपके शरीर पर पानी डाला गया। उठने का इरादा किया तो फिर बेहोश हो गए। इस बार होश आया तो फरमाया, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहो वे नमाज पढ़ें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, उनकी आवाज़ बहुत धीमी है, कुरान पढ़ते हैं तो रोते हैं, लोग उनकी आवाज़ सुन नहीं सकेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हीं से कहो नमाज पढ़ें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने दोबारा यही बात दोहराई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ से बेचैन थे।
गुस्से से आवाज़ काफ़ी बुलंद हो गई। फरमाया, कहो अबू बकर से वही नमाज पढ़ाए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आदेश का पालन किया और आखिर तक वे ही नमाज पढ़ाते रहे। इंतकाल के 4 दिन पहले कुछ सुकून हुआ। हुजूर का वक्त था। 7 मश्क पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया, फिर कपड़े पहने, सिर पर पट्टी बांधी और फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला और सौबान रज़ी अल्लाह ताला के सहारे मस्जिद गए। नमाज हो रही थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला इमाम थे। आहट पाकर उन्होंने पीछे हटना चाहा, लेकिन आपने रोक दिया और उनके पहलू में जाकर बैठ गए। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी सी तकरीर की, मुसलमानों, मुझे पता चला है तुम अपने नबी की मौत से घबरा रहे हो। आखिर ऐसा क्यों? मुझसे पहले जितने नबी आए सबको मौत आई, आखिर मैं भी तो उन्हीं जैसा एक नबी हूँ। सुन लो, जिन लोगों ने पहले हिजरत की है उनके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव रखना, मुजाहिर भी आपस में अच्छा सलूक करें, और हाँ, अंसार के साथ भी अच्छा सलूक करना। जो अंसार भलाई करें उनके साथ भलाई करना, और जो गलती करें उन्हें माफ़ कर देना। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप आम मुसलमान बढ़ते जाएंगे मगर अंसार उसी तरह कम होकर रह जाएंगे जैसे खाने में नमक। मुसलमानों में अपना काम कर चुके, मुसलमानों वे अपना काम कर चुके, अब तुमको अपना काम करना है। वे मेरे शरीर में मैदे यानी आमाशय के समान हैं। मेरे बाद जो मुसलमानों का खलीफा हो, मैं उसको वसीयत करता हूँ कि उसके साथ नेक सलूक करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, मैंने वही चीज़ हलाल की है जो अल्लाह ने हलाल की है, उसी चीज़ को हराम किया है जिसको अल्लाह ने हराम किया है। मुसलमानों, किसी को मैंने मारा हो तो यह पीठ हाजिर है, मुझे भी वह मार ले। किसी को मैंने कुछ कहा हो तो वह भी मुझको कह ले। किसी से मैंने कुछ लिया हो तो वह मुझसे ले ले। एक मुसलमान खड़ा हुआ और बोला, अल्लाह के रसूल, आपके पास मेरे 3 दिरहम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 3 दिरहम दिए। फिर फरमाया, अय अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा, अय अल्लाह के रसूल की फूफी सफ़िया, अल्लाह के यहाँ के लिए कुछ कर लो, मैं तुम्हें अल्लाह से नहीं बचा सकता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैतुल माल की 9 अशरफियाँ थीं। बीमार हुए तो आशंका हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और ये अपने ही पास रह जाएं। हुक्म दिया कि इन्हें गरीबों को दे दिया जाए, लेकिन सब लोग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल में व्यस्त थे, इसलिए किसी को आपका हुक्म याद ना रहा। इंतकाल से 1 दिन पहले आपको फिर ख्याल आया तो पूछा, वे अशरफियाँ क्या हुई? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह के रसूल, वे घर ही में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वे अशरफियाँ मंगाईं और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हाजिर कर दी। उनको आपने हथेली पर रखा और फरमाया, अगर मुहम्मद को मौत आ गई और ये उसके पास ही रखी रह गई तो वह अपने रब को क्या जवाब देगा? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुछ गरीब मुसलमानों में बांट दिया। तकलीफ बहुत बढ़ गई। बुखार इतना ज़्यादा तेज़ हो गया कि पूरा शरीर जलने लगा। चहेती बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला रोज़ बाप की खिदमत में हाजिर होती। आप उन्हें देखकर स्नेह से खड़े हो जाते, उन्हें चूमते और अपने पास बिठा लेते। आज बड़ा की बेचैनी थी, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला आई तो आप उठकर प्यार न कर सके। वे पास आईं, स्वयं उन्होंने आपको चूमा और पहलू में बैठ गई। सदकल्लाहु मौलाना असीम।